Yes, friend, let us see now the exercise 1.5. But before going to exercise 1.5, I would like to highlight some formula that has already been read you earlier. Simply I am revising it so that it can be applied easily in the coming exercise. The formula is here. In class 9th you have seen commutative property, associative property. Here is the distributive property. Distributive property is what? Here are two operations, multiplication and addition. So A is multiplied to the product sum of B and C. So A is distributed with B as well as to C. So it is written as A into B plus A into C. Hope it is clear now. There is no hesitation at all. That's why I thought to take it together with exercise 1.5 so that the formula can readily be applied in answering the questions. So let us see now number 2. This is very important article formula that you have seen in class 8 also. The product of A plus B and A minus B. This is very useful identity. It is written as A square minus B square. You can apply just to check the distributive property. A can be multiplied to A minus B. Again B will be multiplied to A minus B. Finally you will get after simplification it is A square minus B square. It is very useful in application of the coming questions. Now third part, let A and B be positive real number. This is very important. A and B be positive real number. Then only root AB is equal to root A into root B. Because suppose you are taking 5 into 3. This can be written as root over 5 into root over 3. This is applicable because 5 and 3 are positive. But if you take minus 2 into minus 3 as a product, then if you are writing root over minus 2 into root over minus 3, then it is not applicable because you have seen that root A exists if A is greater than 0. First criteria that A should be greater than 0. For easy understandable, we have taken A as the prime number. So I hope it is clear now. Let us see the same fact, that's why this restriction is given. So root over AB is written as root A into root B. So I hope it is clear now. Similarly, second, root over A by B is equal to root over A upon root over B. Similarly, third, you can apply formula 2 identity here. You can take this is the term without root, this is the term without root plus minus. So root over A whole square, root over A whole square means what? Root A into root A. What? Root over A into A. This is root over A square. If any quantity which is inserted within this third, it is coming as A, because here it is 2 there, so you can write here. I will tell you later in the next discussion how it is. So root over A square becomes A. That's why it is A and this is minus root over B whole square B. Here again question of fourth part. This root over A plus root over B into root over C plus root over D is coming as root AC plus root AD plus root BC plus root BD. It's very simple task because A can be multiplied to C, it is root over AC. B can be multiplied to D, root over BD. Similarly, other terms are here. So this formula is to follow. तो हमको लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे जो चीज बताया गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया था। ये सारे फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए। तो चलिए चलते हैं अलग अलग क्वेश्चंस को देखने के लिए और देखते हैं किस तरह से हल निकाला जाता है, क्या क्या अप्रोच हमको यूज करना है। आपको बीच बीच में याद दिलाते चलेंगे
क्योंकि उसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। सवाल को पढ़ा नहीं जाता है, सवाल को बनाया जाता है, फॉर्मूला ऑफ एप्लीकेबिलिटी के आधार पर फॉर्मूला को देखा जाता है और बहुत सावधानी से अप्लाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई करना आपको है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, ये आपको क्लासिफाई करना है। हम लोग पहले भी देख चुके थे, यहाँ भी देख रहेंगे, क्योंकि बहुत समय से इसका डिस्कशन करते हम लोग आ रहे हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे। यदि आप नहीं हो पाए हैं तो पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखते चलिए, रेशनल इरेशनल के बारे में पूरी जानकारी मिलती चली जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या कह रहा है, 2 - √5। कौन सा ऐसा थिंकिंग है जिससे हम इस आंसर को देने में सक्षम होते हैं, तो उसको आप देखिए। क्या देखेंगे, 2 और -√5 को आपस में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, 2 आपका क्या है, रेशनल है, 2 रेशनल है, √5 क्या है, ये इरेशनल है। दो तरह से आप देख सकते हो, आप 5 का स्क्वायर रूट निकालते चले जाइए, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरह से हमारा इरेशनल हुआ। और रूल क्या है, सम ऑफ 2 रेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये आपको माइंड में रखना है कि इरेशनल और रेशनल का जो सम होता है इरेशनल ही होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सम ही नहीं, डिफरेंस भी, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। लेकिन बहुत सारे ओकेजन होते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन भी हो जाता है। कभी कभी हमारे सामने समस्या आती है कि √2 क्या है, इरेशनल है, फिर √2 क्या है, इरेशनल है। ये दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, जो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। हमारा यह क्या है, ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, इसलिए इरेशनल बना। यदि इरेशनल होता और इरेशनल होता तो ऐसी स्थिति में इसको हम इरेशनल नहीं कर सकते थे। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सावधानी से आपको स्टडी करना है और देखना है। तो हो सकता है आपको क्लियर हो गया है, पूरे विश्वास के साथ कर देते हैं, क्लियर होना ही चाहिए, नहीं तो आप बार बार देखते चलिए, इसको सोचिए समझिए, तो चलते हैं आगे। तो आपका रिजल्ट क्या बना, उस रूल के आधार पर 2 - √5 बन गया इरेशनल, दिस इज इरेशनल। अब आप इसी लॉजिक को लेकर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में चलते चले जाइए। सेकेंड में है 3 + √23, 3 + √23, देन -√3, 23 -√23। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखेंगे 3 + √23 -√23, 23 और 23 कैंसिल हो गया, तो बचा 3। ये हमारा क्या बन गया, रेशनल। तो होप अप्लाई दिस मेथड, you will get the concepts of rationalization in answering it. Similarly, third, I am reading now 2√7 by 7√7. Here √7 is common to numerator and denominator, therefore the result is 2 by 7. Hence it is rational. 1/√2, 1/√2. Number 4, it is given 1/√2. So I would like to simplify it. How is simplification? Just you check it. Multiply by √2, numerator and denominator, √2 into √2. Now multiplying and dividing by the same quantity, √2 and √2. √2 से
न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा क्या बन गया, √2 अपॉन √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ओवर दैट इज 2। तो आप इस 2 को 1/2 कर दीजिए, राइट में यहाँ कर दीजिए 2 2। तो ये हमारा जो √2 है इरेशनल है। यदि इरेशनल को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा इरेशनल ही होगा, इसलिए क्या बन गया, इरेशनल हुआ। तो हो सकता है आपको क्लियर हो रहा है, इसको माइंड में बैठाते चलिए और अपने आइडिया को हमेशा क्लैरिफाई करते चलिए। क्वेश्चन 5 1 का फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको यहाँ बताया कि इरेशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट से तो आपका इरेशनल पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन यदि दो इरेशनल को सेम इरेशनल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनकर रेशनल बन जाता है। तो हम जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हल करते चलेंगे। तो हमारा पाई भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि पाई हमारा इरेशनल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए। सो लेट अस सी नाउ अनदर क्वेश्चन। जिस तरह से आपको लॉजिकली समझाया जा रहा है उस तरह से आप आंसर करते चलेंगे और आप खुद अपने आप को देखेंगे कि आपके अंदर में बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, आपका नॉलेज बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा है। अब आप चले आगे में क्या कह रहा है, सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये सारे एक्सप्रेशन को सिम्प्लीफाई करने हैं, तो हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और बाकी समझा देंगे इसी तरह से, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। 2 का फर्स्ट में क्या है, 3 प्लस √3 एंड देन 2 प्लस √2, इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो सिम्प्लीफाई करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 से मैच कर रहा है तो 4 को अप्लाई कर देंगे हम। √a से सबको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √b से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कैसा होता है। ये आपको डिटेल समझा रहे हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे हम 3 इंटू 2 प्लस √2। यस, इसका 3 इसके साथ पूरे के साथ √3 पूरे के साथ, तो 3 इंटू 2 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। क्लियर हो रहा होगा। 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2 प्लस √2 के साथ और √3 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को √2 से, यहाँ भी वही, यहाँ भी आएगी। इस तरह से रिजल्ट आपका आ गया 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2। अब चलिए क्या दिखाई पड़ रहा है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू √2 3 √2 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रॉपर्टी से 1 से, तो बन जाएगा √6। इसलिए आप ध्यान से प्रॉपर्टी को देखते चलिए। तो आप देख रहे हैं यहां से कि क्या रिजल्ट हमारे पास आया। सारे रिजल्ट को हम देखेंगे क्या लाइक टर्म है, क्या लाइक टर्म होने का मतलब है कि हमारा रेशनल है, कोई भी रेशनल यहाँ नहीं है, तो इसीलिए रहेगा ये। 3 √2 क्या होगा, इरेशनल है, लेकिन सर्ड के अंदर क्वांटिटी क्या है, 2 है। सर्ड, इसको सर्ड कहते हैं, और इसके अंदर का जो क्वांटिटी हो तो रेडिकल, ए साइन ऑफ रेडिकल भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 3 √2 और 2 √3 दोनों ही डिफरेंट सर्ड हैं, दोनों के जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी अलग अलग है, इसलिए दोनों ही डिफरेंट सर्ड हो गए, इसलिए आपस में जुड़ेगा नहीं। √6 भी अलग है, इसलिए ये 3 जितने टर्म है चारों वो सब अलग अलग रहेंगे। यही आप आंसर छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। अब आप सेकंड को देखें। सेकंड कह रहा है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। तो आपका ये उसी तरह से जो फॉर्मूला बताया गया है, फॉर्मूला पर ध्यान देंगे हम। 2 का सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट 3 प्लस √3। 3 को आप ये माने, 3 को आप ये माने। अब चलिए फॉर्मूला जो हम टिक लगा रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए नंबर 2,
3 को आप ये माने, b को माने √3, तो देखेंगे a प्लस बी टू ए माइनस बी फॉर्म आ रहा है। बेहतर हम करके दिखा देते हैं। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, आपको आराम से देखना है। सो हियर और यू कैन सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। 3 को पूरी से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 माइनस √3 प्लस √3, 3 माइनस √3। क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, अब आराम से बनाकर सीखिए। फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे। 3 इंटू 3 माइनस 3 √3 प्लस 3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √3। अब देखिए 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 हो गया, माइनस 3 √3 प्लस 3 √3 माइनस √3 इंटू √3, ये हो गया √3 होल स्क्वायर, माने √3/3 होल स्क्वायर मतलब 3 हो गया है। तो 9 और 3 हमारा रेशनल है, ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3, लेकिन माइनस √3 और प्लस √3 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही लाइक साइड है, दोनों के अंदर का क्वांटिटी बराबर है। तो रिजल्ट आया 9 माइनस 3 दैट इज 6, ये हमारा रिजल्ट आया। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपका रहा सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से थर्ड में a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कर लेंगे। फोर्थ में पहले वाले मेथड को आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू द डायमीटर। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो आपको यहाँ बता दें, यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, कोई फैक्ट का कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सर्कमफेरेंस को यदि आप मेजर करने जाएं स्केल से, तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डिसिमल में भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा आ जाए 15 या 16 या 20 या 50, ये आ सकता है 3.45 भी आ सकता है, नीचे भी इस तरह से कुछ भी आ सकता है डायमीटर के फॉर्म में। इसलिए प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू द डायमीटर, that is pi is equal to c by t. This seems to contradict the result pi is irrational, no contradiction at all. How will you resolve this contradiction? बता दिया आपको कि न्यूमरेटर ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूरेसी में आ जाएगा, क्योंकि pi is equal to c by d, यदि c रेशनल होता, d c एक इंटीजर होता, d भी इंटीजर होता, ऐसे अवस्था में हमारा जो केस था लोएस्ट फॉर्म में होने से ए रेशनल का टर्म बन जाता, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। सी हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 2.35 भी हो सकता है, डी हमारा 3.99 भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक जो है पाई इरेशनल बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा गया है कि पाई क्या है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से डायमीटर है, इसलिए अब इरेशनल है। इसी संदर्भ से हम समझते हैं कि पाई के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अभी अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 4, 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।